हम लोग सब अपना आंखें बंद करेंगे. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Thank you, Father God, for this day. Thank you, Lord, for bringing us all together today and for speaking your word to us, for teaching your word, Lord. We thank you for your Holy Spirit, Lord, who is going to be speaking through me. And thank you, Lord, for opening the eyes of everyone's hearts over here, who are present over here, and also who are going to be listening to this teaching, Lord. And thank you that they understand all that you are teaching them today, Lord, and that they are able to apply it in their day-to-day life. Thank you, Father God, for keeping everyone safe, for bringing them all safely over here, and for letting no harm come to anyone. We make this prayer through Christ our Lord. Okay, so today I'm going to be preaching on the topic of wisdom. Why do we need wisdom? Why is it important? What is wisdom mostly? And how we can ask the Lord for wisdom, how we can pray for wisdom. So first, ओके तो आज हम लोग विजडम क्या था प्रज्ञा के बारे में सीखने वाले हैं. हम प्रभु से प्रज्ञा कैसे मांग सकते हैं और प्रज्ञा क्यों जरूरी है हमारे जिंदगी में. तो हम जेम्स चैप्टर 1 वर्स 1 पे जाएंगे. याकूब का पुस्तक 1 वाक्य 1. Yes. Salutation, James, a servant of God. James, a servant of God. एक minute. Can we read from verse 2? Faith and wisdom. Faith and wisdom. My brothers and sisters. My brothers and sisters. Whenever you face trials. Of any kind. Consider it nothing. But joy. Can we read that again? Faith and wisdom. Faith and सब लोग साथ में बोलेंगे. या हिंदी also. Faith and wisdom. Faith and wisdom. 1 minute, I'll search. Yakub. James. हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो. So James is telling us whenever we face trials, we have to consider it all joy. Now personally, I don't know about you all, but whenever I face trials or temptation, I can never be joyful. There is also this one song, whenever we used to go to retreat, they used to sing, rejoice in the Lord always. But ऐसे होता नहीं है. हम trials में कभी खुश तो कभी नहीं रह सकते. क्या कोई आप लोग में से खुश रह सकता है ट्रायल्स में? आनंदित रह सकता है ट्रायल्स जब आता है, जब कठिनाइयां आती है आपकी जिंदगी में, तो क्या आप खुश रह सकते हो, हाँ या ना? नहीं, राइट. बट इधर याकूब कह रहा है कि हमें ये सब जो कठिनाई है, जो ट्रायल्स है, टेम्पटेशन है, उससे क्या दिया है, सॉरी, आनंद की बात समझना है. तो अब जब हम व्हाट इज द वर्ड गिवन फॉर टेम्पटेशन इन हिंदी? परीक्षा. जब हमें ये समझना है कि जब हमें परीक्षा, when we face temptations, it is not a pass for us to sin. जब हम लोग के
सामने परीक्षाएं आती है, उसका मतलब नहीं कि हम पाप कर सके, वो हमारे लिए एक पास नहीं कि हाँ अभी मुझे टेम्प्ट किया है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं ऑब्वियसली सिन करूंगी, नहीं। टेम्पटेशन आए, वी have to rely on God to give us the strength, the understanding to overcome this temptation. ठीक है, तो हर दिन हम लोग के सामने कोई ना कोई कठिनाई या कोई ना कोई परीक्षा आते रहेंगे, और अब ये कठिनाइयों को, ये परीक्षा को पास, ओवरकम को क्या बोलते हैं, पार करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ नॉलेज इज, सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है। ये जो परीक्षाएं है हमारे जिंदगी की, वो पार करने के लिए, उसके लिए हमें प्रभु का प्रज्ञा चाहिए होता है। ठीक है, तो अब नॉलेज और विजडम में डिफरेंस क्या होता है? नॉलेज मैं इंग्लिश में बोलूंगी, कैन यू टेल मी इन हिंदी व्हाट इट इज? हाँ, नो, आई knowledge is basically collecting or gathering information, while wisdom is using that knowledge, putting it to practical use in your life. How will you say that in Hindi? ज्ञान एक समझ, ज्ञान एक समझ है, और प्रज्ञा उस समझ को अपने जिंदगी में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम स्कूल की परीक्षा को लेते हैं, एग्जाम्स जो हम स्कूल में देते हैं, पूरे साल हम लोग की टीचर हम लोग को सिखाती रहती है, और एग्जाम के टाइम में जो ज्ञान हमें मिलता है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो नॉलेज हम गैदर करते हैं ये टीचिंग से, हम वो अपने एग्जाम में यूज करते हैं, और इसे बेसिकली विजडम कहते हैं, यूजिंग इट इन योर एग्जाम्स एंड योर पासिंग योर एग्जाम्स। ठीक है, सो knowledge, however, knowledge is not enough to pass the test of life. अपने इस जिंदगी, हमारे जिंदगी की परीक्षा को पास करने के लिए ज्ञान काफी नहीं है, प्रज्ञा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास चाहे दुनिया भर का जितना भी ज्ञान हो, हम जिंदगी के परीक्षा में वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस हमें प्रभु का अंडरस्टैंडिंग, प्रभु का प्रज्ञा, क्या प्रभु का समझ चाहिए होता है। हाँ, प्रभु का ज्ञान चाहिए होता है, ज्ञान का समझ, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मैं जब मेरा रिलेशनशिप, मेरा प्रभु के साथ रिलेशनशिप चालू होने से पहले मैं ऑब्वियसली तभी भी बाइबल पढ़ती थी, बट मैं प्रभु को जानती नहीं थी, तो मेरे को उनके वर्ड का ज्ञान था, नॉलेज था, बट विजडम नहीं था। उसको, उस वर्ड को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज करूं मुझे नहीं मालूम था। ऑब्वियसली मेरे को स्क्रिप्चर्स बचपन से भायाट है, तो जब भी ट्रायल्स या टेम्पटेशंस आते थे मैं सोचती हाँ मेरे को स्क्रिप्चर्स आते हैं, राइट, तो मैं अपना नॉलेज यूज करके इन टेम्पटेशंस को, इस परीक्षा को पास कर सकती हूँ, बट फेल होती थी क्योंकि मेरे पास विजडम नहीं, मेरे पास प्रभु का समझ नहीं है, इनका प्रभु के ज्ञान का समझ नहीं है। तो इसलिए जब भी हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आती है, सिर्फ प्रभु के शब्द का ज्ञान काफी नहीं है, उसके लिए हमें प्रभु का समझ भी चाहिए और प्रज्ञा भी चाहिए। तो sorry, when we rely on our own understanding we will fail. Okay, तो अभी मैं आप लोग को थोड़ा नोट्स दूंगी, सब लोग को लिखना है, और मैं पॉइंट्स करके दूंगी और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि समझ में भी आए ऑब्वियसली। ओके, सब लोग लिख रहे हैं? ओके, मैं इंग्लिश में पहले बोलूंगी और फिर हिंदी में कोई ट्रांसलेट अगर करके दे देगा तो। ओके, knowledge means accumulating facts. Knowledge means accumulating facts and gathering information.
Knowledge means accumulating facts and gathering information. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, सॉरी हिंदी में ज्ञान मतलब हकीकत को एकत्रित करना और गैदरिंग इंफॉर्मेशन. इज दैट इट? ज्ञान इज नॉलेज ना. इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन जमा करना, जमा करना. ओके. तो जब हम, जैसे कि मैंने बोला, जब मेरा रिलेशनशिप चालू नहीं हुआ था प्रभु के साथ, तो मेरे पास सिर्फ ज्ञान जमा था, सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा था, मैं उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाती थी. ठीक है. तो नॉलेज इज जस्ट अक्यूमुलेटिंग एंड कीपिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन योर माइंड बट नॉट बीइंग एबल टू प्रैक्टिकली यूज इट इन योर लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. while wisdom is seeing life wisdom is seeing life from God's point of view. While wisdom is seeing life from God's point of view, comma, a practical insight into the way of God. It is a practical insight into the way of God. In short, it is the practical use of the knowledge of the word of God. It is the practical use of the knowledge of the word of God. हिंदी में क्या? क्या? Wisdom is seeing life from God's point of view, a practical insight into the way of God. In short, it is the practical use of the knowledge of God, knowledge of the word of God. प्रज्ञा मतलब प्रज्ञा मतलब परमेश्वर के दृष्टि से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन को देखना और practical insight into the way of God. Or just to the last point, it is the practical use of the knowledge of the word of God. प्रभु के शब्द के ज्ञान को का वापर करना अपने जिंदगी में, व्यावहारिक रूप में वापर करना या इस्तेमाल करना. ओके. तो अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिक, ठीक है, इफ यू आर सिक, यू हैव सम सिकनेस, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप प्रभु का शब्द लोगे, आपको उस शब्द का ज्ञान है, मतलब कौन सा स्क्रिप्चर यूज करोगे आप लोग? बाय द स्ट्राइप्स एंड वुंड्स ऑफ जीसस आई वाज हील्ड, आई एम हील्ड, राइट? ओके. तो ये you have the knowledge of the scripture, you know that 2000 years ago when Jesus died on the cross, जब प्रभु ने अपना लहू बहाया उस क्रूस पे, तभी हमारे सब क्या है बीमारी, हम चंगे हो गए, हमारी सब बीमारी ठीक हो गए. तो जब हमें ये ज्ञान मिलता है और हम जब इस ज्ञान का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में करते हैं, उसे प्रज्ञा कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. a person can have knowledge, can have a head full of knowledge,
facts and information. A person can have a head full of knowledge, facts and information, but yet have no wisdom. But yet have no wisdom. A person can have a head full of knowledge, व्यक्ति को संसार का पूरा ज्ञान सांसारिक ज्ञान हो एक व्यक्ति को सांसारिक ज्ञान हो सकता है, पर फिर भी प्रज्ञा नहीं, फिर भी उसमें प्रज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि जब मेरा रिलेशनशिप, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ चालू नहीं हुआ था, मेरे पास उनके शब्द का ज्ञान था बट प्रज्ञा नहीं। तो मेरे सर में, मेरे दिमाग में सब उनका स्क्रिप्चर्स था, मेरे दिल में उनका स्क्रिप्चर्स था, बट विजडम नहीं था। तो मेरे को बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बाहर थे, बट उनका प्रैक्टिकल यूज, उनका व्हाट इज प्रैक्टिकल यूज, उनका व्यवहारिक ज्ञान मुझे नहीं मालूम था। ठीक है। तो एक इंसान के पास ज्ञान हो सकता है प्रभु के शब्द का, पर उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने जिंदगी में, उसका समझ नहीं हो सकता, उसका प्रज्ञा नहीं हो सकता। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, wisdom is given by God. Wisdom is given by God, while knowledge is learned. Wisdom is given by God, while knowledge is learned. प्रज्ञा परमेश्वर से मिलती है और ज्ञान सीखा जाता है। ठीक है। प्रज्ञा परमेश्वर से मिलती है और ज्ञान सीखा जाता है। Again, we can take the same example. You're reading the Bible, you can by heart it like you're by hearting. जैसे कि हम लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, हम by heart करते हैं आंसर, जो बड़े बड़े आंसर्स है हम by heart करते हैं, तो उसे नॉलेज कहते हैं। हम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम अपने परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो विजडम है वो ऐसे ही नहीं आता, वो हमें परमेश्वर से पूछना होता है और वो परमेश्वर हमें देते हैं। ठीक है। तो विजडम इज गिवन बाय गॉड एंड नॉलेज इज लर्न्ड। देन विजडम is gained by asking of the Lord. Wisdom is gained by asking of the Lord and by meditating on His word. Wisdom is gained by asking of the Lord and by meditation of His word, while knowledge is gained by studying. Wisdom is received by looking up to God. Wisdom is gained by looking up to God, and wisdom is gained by looking up to God, while knowledge is gained by looking around the world, while looking around in our surroundings. Wisdom never fails. हाँ, उससे पहले वाला looking up to God, while knowledge is gained by looking around. Knowledge is gained by looking around.
wisdom never fails. While knowledge can fail. Wisdom never fails, while knowledge can fail us. अब ये लास्ट पॉइंट हम मोसेस के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सॉरी। अब मोसेस का स्टोरी सबको मालूम है। मोसेस वो एक इजराइलाइट था जन्म से, वो एक हिब्रू था, पर जब फ़ारो को पता चला कि ये इजराइलाइट्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और वो लोग स्ट्रॉन्ग है, वो लोग उसके किंगडम उसके लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको डर लगने लगा। तो उसने अपने सोल्जर्स को कमांड किया कि जाके ऑर्डर किया कि जाके सब मेल चाइल्ड को, सब जो न्यू बॉर्न है उनको मार डालो। तो मोसेस की मम्मी ने उसको एक बास्केट में रख के नाइल के रिवर में डाल दिया था, राइट। और वो बास्केट फ़ारो की बेटी को मिला और उसने मोसेस को गोद लिया। तो हमें मालूम है कि अभी वो एक अडॉप्टेड प्रिंस हो गया है, वो प्रिंसेस राजकुमार ना, गोद दिया हुआ राजकुमार है इजिप्ट का। और तो उसे अपने बचपन से ही बहुत एकदम अच्छा एजुकेशन मिला होगा, राइट, क्योंकि वो अभी एक राजकुमार है, राजा की बेटी का गोद दिया हुआ बेटा है, तो उसको बहुत ज्ञान मिला होगा, उसका नॉलेज बहुत ज्यादा हुआ होगा। बट जब उसने अपने किंगडम में देखा कि जो इजराइलाइट्स है, जो लोग है उधर, उनको स्लेव जैसे ट्रीट कर रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, उसने एक बार क्या किया, उसने एक फ़ारो के एक इजिप्शियन को मार डाला। उसने अपने नॉलेज पे, अपने जजमेंट पे बेस्ड उसने डिसीजन लिया और उसने जो इजिप्शियन है उसको मारा, जो वो क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, द पर्सन हु ही किल्ड, हाँ, मिस्र देश के सैनिक को उसने मार डाला। उसने अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज पे बेस्ड वो डिसीजन लिया और उसने उसको मार डाला। और जब उसने वो किया, फिर उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया, उसने एक मर्डर कमिट किया है, तो वो उधर से भाग गया। उधर से भागा, वो व्हाट इज डेजर्ट कॉल्ड इन, रेगिस्तान को पार करके वो जो एक प्रीस्ट है जेत्रो, उसके घर पहुंचा वो, और जेत्रो के अंदर वो ट्रेन हुआ, उसके फ्लॉक्स को, उसके शीप को टेंड करने लगा, भेड़ को टेंड करने लगा, और वो उसकी बेटी को शादी किया। और एक दिन जब वो उसके भेड़ को देख रहा था, उसने जलता हुआ एक बुशेस, झाड़ी को देखा, और वो तभी परमेश्वर ने उससे बात किया, उसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू फिर से मिस्र देश जाए और मेरे लोगों को मुक्त कर, उनको छुड़ा, उधर से गुलामी से छुड़ा, इजिप्शियंस से छुड़ा। तो मोसेस कंफ्यूज था, वो फिर भी अपने नॉलेज पे थोड़े टाइम के लिए डिपेंड किया। उसने सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं स्टटर करता हूँ, स्टटर, मैं हकलाता हूँ, मैं तो बात भी नहीं कर सकता, मैं जाके फ़ारो से कैसे बात करूँ कि वो इजिप्शियंस को छोड़े, सॉरी वो इजराइलाइट्स को छोड़ दे, वो मेरा नहीं सुनने वाला, और मैंने तो उसके एक सोल्जर को मार डाला था, तो अगर मैं उधर फिर से चला जाऊं, वो लोग मेरे को गिरफ्तार कर देंगे। पर प्रभु ने बोला, मैं तेरे साथ तेरे भाई को भेजूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कहूंगा कि तू क्या करेगा, और फ़ारो तुझे कुछ नहीं करेगा, तू सेफ है, तू जाके उससे बात कर, उससे बोल कि मेरे लोगों को छोड़ देने, ठीक है। तो फिर से वो इजिप्ट गया, उसने फ़ारो से बात करना चालू किया, वो प्रभु पे निर्भर होने लगा, और वो प्रभु का बात सुनने लगा। उसने जो भी प्रभु उसको बोलता था वो करता था।
वो प्रभु के समझ पे अभी डिपेंड करना चालू किया, उस पर निर्भर होने लगा, वो प्रभु का बात सुनने लगा। और फिर भी जब फैरो नहीं सुन रहा था तो प्रभु ने प्लेग्स सेंड किए इजिप्ट पे, और फाइनली जब उसने प्रभु का समझ लिया, प्रभु के समझ पे वो पूरी तरह से निर्भर होने लगा, और फैरो ने उन लोग को छोड़ दिया, इजराइल्स को छोड़ दिया, उन लोग को जाने दिया। तब हम देख सकते हैं कि जब हम अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज पे डिपेंड होते हैं, हम अपने आप पे नहीं, ट्रबल, व्हाट इज ट्रबल, अपने आप पे समस्या ला सकते हैं। जैसे कि जब मोसेस ने अपने ज्ञान पे, अपने नॉलेज पे डिपेंड हुआ, उसने गलत डिसीजन लिया, उसने किसी का खून कर दिया। बट जब वो प्रभु के समझ पे डिपेंड, प्रभु के समझ पे डिपेंड होने लगा, प्रभु की प्रज्ञा पे डिपेंड होने लगा, हम देख सकते हैं कि प्रभु ने उसे सेफ रखा, उसे गाइड किया, और उसे हर एक ट्रायल्स और ट्रेबुलेशन से बचाया। और जब हम एक्सोडस में जाते हैं, हम एक्सोडस 33 वर्स निर्गमन 33 वाक्य 13, एक्सोडस 33 वर्स 13 33 verse 13। हिंदी में, हाँ हाँ, if you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Can we read that again? If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. So we can see, हम देख रहे हैं कि मोसेस जो है वो प्रभु से बात कर रहा है, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे आप शो मी योर वेज, मुझे आपका रास्ता दिखा, आप मुझे सिखाओ, आप मुझे आपका ज्ञान दो, आपका प्रज्ञा दो, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। आपके जो लोग हैं वो मेरे खिलाफ आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग खाना नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा। हम देख सकते हैं पूरे एक्सोडस के चैप्टर में जब भी कुछ भी प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, अगर वो लोग को थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस हो, इजराइल्स गुस्सा होके जाके मोसेस से कंप्लेन करते हैं, उसको 2-3 बार ऑलमोस्ट मारने पे आए वो लोग, क्योंकि वो लोग जब वो लोग को पे ट्रायल्स आए, वो लोग को लगा कि हम इजिप्ट में बेटर थे, क्योंकि एटलीस्ट तभी हमें खाने मिल रहा था, हमें पीने मिल रहा था। तो जब ट्रायल्स आ रहे थे, मोसेस के खिलाफ आ रहे थे, और मोसेस वो ग्रम्बल करने की जगह, वो कंप्लेन करने की जगह वो प्रभु के पास जाता था और वो प्रभु को पूछता था, मुझे आपका रास्ता दिखाओ, मुझे आपका ज्ञान दो, ताकि मुझे पता चले कि मैं इस ट्रायल्स को, इस टेम्पटेशंस को कैसे पार करूं, इस परीक्षा को कैसे पार करूं। ठीक है, तो जब हमें हमारे जिंदगी में ट्रायल्स या टेम्पटेशंस आते, जब परीक्षा आते, तो हम क्या करते हैं? क्या हम प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम मोसेस जैसे जाके प्रभु को पूछते हैं, मुझे आपका रास्ता दिखाओ? क्या या हम इजराइल्स जैसे जाके रोते हैं, कंप्लेन करना चालू करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, हम ग्रम्बल करते हैं, राइट? क्या कोई भी है जो पहले प्रभु के पास जाता है? मैं भी नहीं जाती थी, इट्स ओके, नहीं, इट्स नॉट ओके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मोसेस ज्यादातर प्रभु के पास
वो उनसे मदद मांगता था, उनको पूछता था कि मुझे आपका रास्ता बताओ। और हम साम्स 103, साम्स 103:7 में देखते हैं। साम्स 103 व्हाट इज साम्स? नीति भजन संहिता 103 वाक्य 7। साम्स 103:7। He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. We can see the clear difference. हमें अंतर एकदम अच्छे से दिख रहा है। प्रभु ने अपने can we read this in Hindi also? उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इज़राइल को अपने महान कार्य। तो प्रभु ने अपने मार्ग मोसेस को दिखाए, मूसा को दिखाए, पर इज़राइल्स को सिर्फ अपने महान कार्य दिखाए। ऐसे नहीं कि प्रभु को अपना मार्ग इज़राइल्स को नहीं दिखाना था, बट जब भी वो लोग पे ट्रायल्स आते थे, थोड़ा सा भी वो लोग को कोई भी कठिनाई आती थी, वो लोग जाके ग्रम्बल करते थे, वो लोग को गुस्सा आ जाता था, वो लोग प्रभु के खिलाफ जाते थे, मोसेस के खिलाफ जाते थे, ठीक है। बट मोसेस क्या करता था? वो जाके प्रभु के उपस्थिति में बैठता था, उनको पूछता था कि आप बताओ मुझे, मैं क्या करूं, क्योंकि ये आपके लोग हैं। और वो कितने बार उसने इज़राइल्स के लिए प्रे भी किया, क्योंकि वो लोग इतना ग्रम्बल कर रहे कि प्रभु को खुद वो लोग पे गुस्सा आने लगा। हम वो जो प्रीवियस एक्सोडस में पढ़े कि उसने प्रभु को बोला कि दिस नेशन इज योर पीपल। वो प्रभु को बोल रहा था कि ये आपके ही लोग हैं और ये आपके खिलाफ ग्रम्बल कर रहे हैं, बट फिर भी आपके लोग हैं, आपने उनको मिस्र देश वालों से मुक्त किया। तो आप बताओ मुझे कि मैं क्या करूं, मैं इनको शांत कैसे करूं, आप मुझे आपका मार्ग बताओ, आप मुझे एक मार्ग बताओ कि मैं इस परीक्षा से बाहर कैसे आऊं, ठीक है। तो मोसेस के पास एक रिश्ता था प्रभु के साथ। वो प्रभु से बात करते थे, वो उनका शब्द सुनते थे और उसे ओबे करते थे। और जब उनका ये रिलेशनशिप ग्रो होने लगा, उसका विजडम ग्रो होने लगा, उसका प्रज्ञा ग्रो होने लगा। और हम देख सकते हैं कि उसके पूरे लाइफ टाइम में वो जब भी प्रभु का बात सुनता था, उसको विक्ट्रीज मिलता था, ठीक है। वो विक्टोरियस था, वो जो भी बैटल्स था वो फेस कर रहा था, वो लोग जीत जाते थे, क्योंकि मोसेस ने प्रभु का शब्द सुना। वो अपने ज्ञान पे नहीं, पर प्रभु के प्रज्ञा पर डिपेंड होता था, ठीक है। और इज़राइल्स का देखें तो वो लोग के पास नॉलेज था प्रभु के शब्द का। उनको जैसे कि इधर दिया है, he made known his ways to Moses and his deeds to the people of Israel। उनको पता है कि प्रभु ने क्या क्या किया उनके लिए। वो जब मिस्र देश में थे तभी इतने सारे प्लेग्स डाले इजिप्ट के, ताकि फैरो वो लोग को छोड़ दे। और इजिप्ट से निकलने के बाद रेड सी डिवाइड कर दिया ताकि वो लोग क्रॉस कर सके। खाना प्रोवाइड किया डेजर्ट में, पानी प्रोवाइड किया डेजर्ट में। वो लोग ने देखा कि प्रभु इतने महान कार्य कर रहा है, पर फिर भी जब भी छोटे चीज छोटी प्रॉब्लम आती थी, वो लोग ग्रम्बल करते थे। तो वो लोग के पास ज्ञान था कि प्रभु का शक्ति कितना है, प्रभु कितने शक्तिशाली है, कितने महान है। फिर भी उनके पास वो प्रज्ञा नहीं थी, उनके पास वो विजडम नहीं था। और जब भी दिस लैक ऑफ विजडम caused them to start grumbling during trials, during tests, because they felt that they used to forget all the good deeds that God has done, all the mighty deeds that He has done. They forgot that He saved them from the hands of the Egyptians. Hallelujah. So
for us to first gain knowledge, for us to first gain wisdom, we need to have a relationship with God. We need to know Him. We need to spend time with Him. We need to meditate on His word. उनके शब्द पर मनन चिंतन करना जरूरी है. हम फिर से जेम्स पे जाएंगे. जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 से पढ़ेंगे. याकूब चैप्टर 1 अध्याय 1 वाक्य 5. जेम्स 1. If any of you is lacking in wisdom, ask God, who gives to all generously and it will be given to you. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. अगर आपको प्रज्ञा चाहिए, अगर आपको विजडम चाहिए, जेम्स क्या कह रहा है? आपको सिर्फ प्रभु से पूछना है, सिर्फ उनसे मांगना है कि प्रभु मुझे प्रज्ञा दो, मुझे विजडम दो. और क्या दिया है? He will give it to you without finding fault. वो आप में कोई दोष नहीं ढूंढेंगे, वो आप में कोई पाप नहीं ढूंढेगा, वो आपको दे देगा. और सिर्फ थोड़ा नहीं, वो जेनरसली देंगे, भरपूर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट वर्स. But ask in faith, never doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Hallelujah. So when you are asking God, जब आप प्रभु से पूछ रहे हो कि मुझे विजडम दो, मुझे ज्ञान दो, तो सिर्फ पूछना नहीं कि अभी आपने पूछा, बट आपको विश्वास करना है कि वो आपको दे देंगे, कि प्रभु आपको प्रज्ञा देंगे, आपको विजडम देंगे. आप फेथ के साथ पूछो, क्योंकि अगर आप में डाउट हुआ तो यू आर लाइक अ वेव ऑफ द सी. आप लोग ने वेव्स ऑफ द सी तो देखा ही है, राइट? इट्स जस्ट ब्लोइंग एंड टॉसिंग विदाउट एनी पर्पस एंड गोइंग नोवेयर. ठीक है, तो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस विल कम इन योर लाइफ हर दिन. इनफैक्ट हर दिन छोटा मोटा टेस्ट, छोटा मोटा टेम्पटेशंस आते रहेगा. और आपको ये पार करने के लिए, ये परीक्षा, ये टेम्पटेशंस पार करने के लिए विजडम चाहिए, प्रज्ञा चाहिए. और आपको सिर्फ प्रभु को पूछना है कि मुझे ये प्रज्ञा दो, ये विजडम दो, मुझे मदद करो इस परीक्षा को पास करने के लिए, इस परीक्षा को पार करने के लिए. और अगर आप फेथ के साथ पूछोगे तो प्रभु आपको प्रज्ञा दे देगा. हालेलुया. ठीक है. So when trials come, God, you have to ask God to show His way. Okay, मुझे याद है जब मेरा रिलेशनशिप प्रभु के साथ इतना अच्छा नहीं था, तभी अगर कोई टेम्पटेशन आता था, मेरा फर्स्ट प्रेयर होता था कि मुझे इस संकट से, इस परीक्षा से निकाल दो. Remove me from the situation, remove the situation from my life. Or instead of asking God for His wisdom, for His way, asking Him to show me His way, मैं उनको पूछती थी कि मुझे इस सिचुएशन से ही निकाल दो. क्या कोई और है जो ये प्रेयर करता है कि मेरे को ये सिचुएशन में नहीं रहना, मेरे को निकाल दो? बट ऐसा नहीं होता. मेरे को पता है नहीं निकलते हम लोग, उस सिचुएशन में ही रहते हैं. या तो पास होते हैं या तो फेल होते हैं. वो डिपेंड होता है कि हमने प्रभु यीशु से फिर उनका प्रज्ञा पूछा, उनको पूछा कि आप मुझे अपना मार्ग दिखाओ, आप मुझे अपना रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं. तो जब हम प्रभु से पूछते हैं, वो डेफिनेटली हमें रास्ता दिखाता है और हम उस परीक्षा में पास होते हैं. बट अगर हम नहीं पूछते, हम अपने खुद के ज्ञान पे डिपेंड होते हैं, हम फेल होते हैं. हम we are back to square one. We go back to square one. Okay, तो अभी हम पॉल का एग्जाम्पल लेंगे. पॉल सबको मालूम है, राइट? सेंट पॉल
तो हम सेंट पॉल का एग्जाम्पल लेंगे। एफिशियंस 1 चैप्टर 1 वर्स 15। Ephesians chapter 1 15 in Hindi 1:5. I have heard of your faith I have heard of your faith in the Lord Jesus in the Lord Jesus and your love and your love toward towards all the saints, all the saints, and for this reason and for this reason I do not cease to give thanks for you for you as I remember you in my prayers. Wait, I want a different version. Huh. What was the last line? And never stopped? What did you read the last line? I do not cease to give thanks for you as I remember you in my prayers. Okay, as I remember you in my prayers. अब पॉल किस बारे में हाँ सॉरी हिंदी में पढ़ सकता है कोई? Ephesians chapter 1 verse 15। मैंने प्रभु ईसा में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता हूँ। तो संत पॉल किस बारे में प्रे कर रहे हैं हम वो नेक्स्ट वर्स में देखेंगे, वर्स 17। I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know Him. संत पॉल के वो लोग के लिए विजडम, वो लोग के लिए प्रज्ञा के लिए प्रे करा। हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे। सॉरी। महिमामय पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक प्रदान करे जिससे आप उसे सचमुच जान ले। तो संत पॉल वो लोग के लिए ना ही रिचेस के लिए प्रे कर रहा है, ना ही पैसों के लिए धन के लिए नहीं प्रे कर रहा। वो प्रे कर रहा है कि वो लोग को प्रज्ञा मिले, वो लोग को प्रभु का समझ मिले। ठीक है, उनके लिए जब हम प्रभु को जानते, प्रभु का हमें प्रज्ञा मिलता है, वो इन अ वे हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रेजर होता है, सबसे बड़ा धन होता है। क्योंकि हम जब प्रभु को जानते हैं, हमारी जिंदगी में चाहे जितने भी कठिनाई हो, हमें ना ही डर लगता है, ना ही हमें कोई टेंशन आता है, क्योंकि हमें पता है प्रभु हमारे साथ है और उनके दूत हमारे साथ है और वो हमें कोई चोट आने नहीं देंगे, वो हमें कुछ होने नहीं देंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे वर्स 18। I'll read in English. I pray that the eyes of your hearts be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you and the riches of His glorious inheritance in His holy people. हिंदी में
वो आप लोगों के वो आप लोगों के मन की आंखों को मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, ज्योति प्रदान करे, जिससे जिससे आप ये देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विश्वास मिली है वो कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामयी में है। ओके, तो संत पौल बोल रहा है कि संत पौल ये जो पीपल ऑफ एफिशियंस है, जो एफिसियों के लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु से कि आप उनको ज्ञान, आपका ज्ञान दो, आपका प्रज्ञा दो, आपका समझ दो, और उनके जो मन का आँख है वो खोल दो, ताकि वो लोग आपके बारे में जाने, वो आपको और भी जाने। तो संत पौल अपना अनॉइंटिंग जो है, व्हाट इज अनॉइंटिंग, अपना अभिषेक यूज कर रहा है ये एफिसियों के लोगों के लिए, ताकि वो लोग को विजडम मिले, वो लोग को प्रभु के शब्द का समझ मिले, ताकि उनको पता चले कि वो भी अनॉइंटेड है, उनके भी जिंदगी में प्रभु का फेवर इज अनुग्रह, प्रभु की मेहरबानी है, क्योंकि हम सब अनॉइंटेड है, हम सब अभिषेक है, अभिषिक्त है, होगा ना, अभिषेक है। तो हम सब अभिषेक है, और ये हमें पता है, हम इतने टाइम से रिट्रीट अटेंड कर रहे हैं, हमें पता है कि हम पे प्रभु का अभिषेक है, पर हमारे जो लव्ड वंस है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको नहीं पता, ठीक है। वो लोग अनॉइंटेड है, उन पे प्रभु का अभिषेक है, बट उन्हें नहीं पता, जैसे इन एफिसियों के लोगों को नहीं पता था कि प्रभु का अनॉइंटिंग, प्रभु का अभिषेक उन पर है। तो संत पौल उनके लिए प्रे कर रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप उनका मन का आँख खोलो, ताकि वो लोग को पता चले कि आपका अभिषेक उन पर है, आपका अनुग्रह उन पर है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अभी हम सीखेंगे कि हम प्रभु को विजडम के लिए कैसे पूछ सके, प्रज्ञा के लिए कैसे पूछ सके। हम बस पूछ सकते हैं कि प्रभु हाँ हमें अनुग्रह दो, और वो हमें दे देंगे, पर जब हमें ये अनुग्रह मिले, प्रज्ञा मिले, हम इस प्रज्ञा को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, और सबके लिए, जिनको भी हम जानते हैं, जिनको भी हम चाहते हैं कि वो सेव हो, वो लोग को प्रभु का वो लोग साल्वेशन रिसीव कर सके। तो हम प्रभु के लिए, जैसे कि संत पौल ये लोग के लिए प्रार्थना करें कि आप इनके मन का आँख खोलो, हम भी प्रे कर सकते हैं कि आप हमारे रिश्तेदारों का, या जिनके लिए भी आप प्रे करो, उनके मन का आँख खोलो, और उनको ये प्रज्ञा दो कि वो लोग भी अनॉइंटेड है, आपका अभिषेक उन पर है, और आप उनके साथ है हर एक ट्रायल्स में, हर एक टेस्ट में, ठीक है। तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पर दूसरों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उन पर भी अपना प्रज्ञा दे सके, प्रज्ञा उनको भी अपना प्रज्ञा दे सके, ठीक है। तो हम प्रभु से इंटरसीड कर सकते हैं। हालेलुया। सबको समझ में आया? क्योंकि मेरा तो हो गया। हम एक बार फिर से वो पॉइंट्स रीड करेंगे खत्म करने से पहले। सब साथ में पढ़ेंगे।
Knowledge means accumulating facts, gathering information, while wisdom is seeing life from God's point of view, a practical insight into the way of God. In short, it is the practical use of knowledge of the Word of God. A person can have a head full of knowledge, facts, and information, but yet have no wisdom. Wisdom is given while knowledge is is given by God while knowledge is learned. Wisdom is gained by asking of God and by meditating on the word of and by meditating of His word. Knowledge is gained by studying. Wisdom is gained by looking up to God, while knowledge is gained by looking around. Wisdom never fails, knowledge can fail us. Hallelujah. तो क्लोजिंग प्रेयर करते हैं. कोई आ रहा है क्लोजिंग प्रेयर करते हैं? आ जा जोएल. चाली हो जाए. name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for the beautiful day of your life. Thank you for teaching us from morning till now. Thank you for going to teach us. Thank you for keeping us safe. Thank you taught us what to share here. Thank you for loving us. Thank you, thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. I take this prayer in your holy and mighty name. Amen. Amen.